Hello students, today in our social science class we will discuss chapter 1 Rise of British Rule in India. So students, let's continue. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. Due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from different nations of the world came to India. There was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk cloth, indigo, etc. In the European countries, trade between India and Europe was carried out through land route and sea route. And at the center of these routes was Istanbul, Constantinople in Turkey. After the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslims, the sea route through Constantinople, Istanbul was closed for the Europeans since they could not do without the spices. The Europeans felt compelled to discover a new sea route, so an era of geographical discoveries began. प्राचीन काल से ही भारत ने अपनी इकोनॉमिक इकोनॉमिक कल्चर और रिलीजन कल्चर की वजह से समस्त विश्व में एक अनोखा स्थान प्राप्त किया है। इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल प्रॉस्पेरिटी के कारण भारत अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में भारत ने अपना एक यूनिक प्लेस बनाया है। यूरोपियन देशों में भारतीय स्पाइसेस, इंडिगो एंड मसलिन एक बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, क्लॉथ जो मीन्स इतना सॉफ्ट एंड थिन होता है कि उसको हम एक मैच बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं। इन सारी कमोडिटीज़ की यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत डिमांड थी। भारत और यूरोप के बीच सी रूट से और लैंड रूट से दोनों ही तरीक़ों से ट्रेड होता था और तुर्की में इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल होता था। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय के बाद तुर्की मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल के थ्रू सी रूट को यूरोपियंस के लिए क्लोज कर दिया था। प्रॉब्लम ये थी कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए इंडियन स्पाइसेस के बिना सरवाइव करना मुश्किल हो गया था। इसलिए यूरोपियंस ने इंडिया के लिए यूरोपियंस को मीन्स अब वो मजबूर हो गए थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब उन्हें इंडिया के लिए सी रूट का सर्च करने के लिए नई नई पॉलिसी वो लोग बनाने लगे। डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया with the inspiration, encouragement and economic help from the Portuguese King Prince Henry, some brave people began efforts to discover new sea route. Many great men tried to discover sea route to India, namely Bartholomew Diaz, who discovered the Cape of Good Hope with the economic assistance from the King of Spain. Christopher Columbus began his adventure of discovering a new sea route, which again came to a stop at an island presently known as West Indies, situated in the Atlantic Ocean. Columbus, who had believed throughout his life that he had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new land. Since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America. It means जो पोर्टुगीज थे, उनके जो किंग थे प्रिंस हेनरी, उन्होंने इंडिया के लिए जो सी रूट सर्च करना था उसके लिए उन्होंने बहुत इंस्पायरेशन दी और इकोनॉमिक हेल्प भी लोगों को दी, जिसके कारण वहाँ बहुत सारे ऐसे ब्रेव पर्सन थे जिन्होंने इंडिया के लिए सी रूट सर्च करने की कोशिश की और अगेन एंड अगेन उन्होंने बहुत से अटेम्प्ट किए। ये सी रूट सर्च करने में स्पेनिश किंग क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी लोगों को इकोनॉमिक हेल्प प्रदान की। अच्छी आशा के माध्यम से उन्होंने अगेन एंड अगेन
मीन्स अपने खुद को सक्सेस बनाने के लिए सी रूट सर्च करने की उम्मीद से लोगों ने बार बार वहाँ पे प्रयास किए। कोलंबस को, जिसने पूरे जीवन में यह विश्वास किया कि उसने इंडिया के लिए सी रूट सर्च किया है, उसने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। रियलिटी ये नहीं थी, रियलिटी यह थी कि उसने एक नई लैंड को सर्च किया था, जो कि बाद में अमेरिका के नाम से जानी गई। The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498 AD. When he reached Calicut in the western coast of India, he was welcomed by the king Zamorin and allowed to carry out business there. Thus, this is considered as an important event in the world, as this opened the doors for other Europeans to come to India. It means जो पोर्टुगीज सेलर वास्को ड गामा था, उसने 1498 में इंडिया के लिए सी रूट को सर्च किया। जब वो भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर कलिकट पहुँचे तो उनका वेलकम, उस समय जो वहाँ के प्रेजेंट किंग थे जमोरिन ने उनको वेलकम किया वहाँ पर, और साथ ही उनको वहाँ पर ट्रेड करने की परमिशन भी दे दी। इस प्रकार यह दुनिया की एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट माना जाता है, जस्ट बिकॉज यह यूरोप के अन्य लोगों के लिए भारत आने के लिए नए दरवाजे खोलता है। भारत आने के लिए पोर्टुगीज़ को पहली बार भारत के लिए सी रूट की सर्च की गई थी। बाद में इसने ट्रेड को भी स्मूथ बना दिया। लगभग 100 ईयर्स के बाद पोर्टुगीज़ ने कई प्रदेशों जैसे कि दमन, दीव, गोवा, कोचीन, मलाक्का एट्सेट्रा को नियंत्रित मीन्स होल्ड करने के लिए पोर्टुगीज़ ने उन्हें ट्रेड के लिए प्रेरित किया। हॉलैंड से डच ने भी यहाँ पर ट्रेड करने की ट्रेड किया, और डेनमार्क से जो डचेस थे, डेनमार्क से भी लोग यहाँ पर बिजनेस करने, ट्रेड करने आए। अंग्रेजी व्यापारियों ने इंडिया में 1600 के साथ के लगभग टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर किया। Our next topic, arrival of Europeans to India, arrival of the British and establishment of trade centers. The Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of the sea route to India. Within a span of 100 years, the Portuguese took control over several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. Inspired by the Portuguese success in trade, the Dutch from Holland and the Danish from Denmark arrived in India for trade. The English traders established the East India Company to carry out trade with India. एक तरीके से देखा जाए तो पोर्टुगीज फर्स्ट थे जो सी रूट की सर्च के बाद सबसे पहले भारत में ट्रेड करने आए थे। लगभग 100 वर्ष के अंतराल में पोर्टुगीज ने इंडिया के कई प्रदेशों जैसे दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलक्का आदि को अपने कंट्रोल में ले लिया था। पोर्टुगीज ने जो यहाँ पे इंडिया में जब उनका ट्रेड सक्सेस हो गया, उससे इंस्पायर होकर जो हॉलैंड से डच और डेनमार्क से जो डेनमार्क से डेनिश इंडिया में ट्रेड करने पहुँचे। जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उन्होंने इंडिया में 1600 AD में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट किया। In 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with the eastern countries, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat, but due to the dominions and opposition from the Portuguese, they were not allowed to establish their trade there. But finally, the East India Company got the permission from the Mughal Emperor Jahangir, and thus the British East India Company established its first trade centre, Koti in Surat, in 1630 AD. Initially, the company established its trade centre in Surat, Bharuch and Ahmedabad. It means जिस समय इंग्लैंड की जो क्वीन थी वो एलिजाबेथ थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ
जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थे उनके साथ ट्रेड करने की परमिशन दे दी। उस समय कि जो कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, उनके नेतृत्व में फर्स्ट जो शिप था वो सूरत पहुंचा। बट जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने जो पहले से ही इंडिया में ट्रेड कर रहे थे उन्होंने उसको अपोज किया, जिसके कारण ब्रिटिशर्स को लगा कि वो यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, मीन्स उनकी जो फाउंडेशन थी वो यहाँ पर नहीं जम सकेगी। बट फाइनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको मुग़ल बादशाह जहांगीर ने इंडिया के अंदर ट्रेड करने की परमिशन उन्होंने दे दी। इस प्रकार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1613 में सूरत में अपना फर्स्ट ट्रेड सेंटर कोठी में उसके का स्टैब्लिशमेंट किया। इन वेरी स्टार्टिंग कंपनी ने सूरत को भरूच और अहमदाबाद में अपना ट्रेड सेंटर स्थापित किया। But due to the strong presence of the Marathas in this region, the company sensed danger to its existence and hence moved towards the south and east directions, where they set up their centers in Machilipatnam, Andhra Pradesh, St. George, Chennai, and Fort William, Kolkata. Mumbai became their headquarters in 1687 AD. But उस समय पर जो मराठास थे उनकी कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि उनका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, वो भी डेंजर में था। सो उन्होंने डिसाइड किया, वो इस डेंजर को मीन्स भाग गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ गए और वहाँ पर अपना ट्रेड स्टार्ट किया, जहाँ उन्होंने आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, चेन्नई में सेंट जॉर्ज और कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की। मुंबई ने 1687 में विज्ञापन में उनका मुख्यालय बन गया। The French East India Company arrived in India for trade in 1668 AD and eventually set up their trade centers in Mahe, Karaikal, Pondicherry, Chandranagar, Machilipatnam, etc. In the 18th century, the English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territories. Between 1746 and 1763, there were 3 Karnataka wars between the French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost, thus making easy the expansion of the British East India Company. Thus, at the end of this battle for power, the Portuguese were left with Diu, Daman, Goa, while French had their trade centers at Chandranagar, Mahe, Karikal and Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to leave forever. It means फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में विज्ञापन में व्यापार के लिए भारत पहुंची एंड एट लास्ट माही, कराईकल, पांडिचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम आदि में अपना ट्रेड सेंटर उन्होंने स्टैब्लिश किए। 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसिस ने लगातार पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अपना होल्ड, अपने मीन्स एग्जिस्टेंस को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविंसेस को अपने अंडर ले लिया। 1746 से लेकर 1763 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 कर्नाटक वॉर हुए, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन्हें वो हार चुकी थी, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एनलार्जमेंट हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस प्रकार जो पावर थी फाइट के जो एंडिंग के टाइम पे जो पोर्टुगीज़ थे उन्हें दमन और गोवा मिला। उसके साथ ही जब फ्रांसीसी के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पांडिचेरी में उनके ट्रेड सेंटर्स बने। मेनली जब इस समय डचेस हमेशा के लिए यहाँ पर जबकि डचेस को हमेशा के लिए इंडिया में इस्टेब्लिश होना था, बट ये पॉसिबल नहीं हो सका। सो स्टूडेंट्स, नाउ इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।